जो माननीय सदस्य अपने लिखित भाषण पटल पर रखना चाहते हो वो रख सकते हैं। श्रीमती शताब्दी राय जी। Thank you, sir. Sir, I raised to speak on the railway budget 2022 and 23. अभी थोड़ा देर पहले राठौर साहब जैसे बोल रहे थे तो वो जब मैं सुन रही थी मुझे लग रहा था सब कुछ तो हो ही गया और क्या बताऊं, कुछ तो बनने का है ही नहीं, कंप्लीट हो गया रेलवेज का काम। फिर भी मैं बोलती हूँ जब बजट अभी पहले रेलवेज के होते थे अलग से, उसका एक अलग मजा था और एक अलग इन्फॉर्मेशन जो करेक्टली इन्फॉर्मेशन देते थे, एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन मिलते थे, वो रेलवे बजट अलग होने से। ठीक है, गवर्नमेंट ने सोचा कुछ अच्छे के लिए होगा। Point 1. GBS in annual plan for 2020-21 of the Ministry of Railways was fixed at rupees 1.61 lakh crore, comprising GBS gross budget support of rupees 70.250 crores, internal resources of rupees 7,500 crore, and extra budgetary resources of BR of rupees 83.292 crore. But in the revised budget, the GBS was reduced by rupees 41,000 crore from rupees 70,250 crores to just rupees 29.250 crore. According to the expenditure profile of the Ministry of Railways, it appeared that under the budgetary support, an amount of rupees 79.398 crores was allotted as a special loan from general revenues in 2020-21. If the observation is true, those it will be equally important to know from the government that was what was the reason behind the loan agreement in the revised estimate participating to the GVS. Also, when in 2020-21 in government has paid 1.08 lakh crore, come down to GBS of rupees 1.07 lakh in 2021 and 22. And budget estimate shows GBS rupees 1.17 lakh crore for 2022-23. So increase of GBS not suitable for over past 2 years. Economic Survey 2021-22 informed that the Indian Railways has set a target of 100% electrification of its network by December 2023. The government says to achieve that target with the creation of other infrastructure in the sector, the government will increase the CAP6 capital expenditure by 5-fold in the last 7 years. However, the government record confirmed the GBS for railway was reduced by rupees 41,000 crore to just rupees 2,029.250 crores from the rupees 70.250 crores in 2020-21. Point 2. Just 1 year ago, on 16th March 2021, the then Railway Minister Piyush Goyal said the government does not plan to have over the railway sector in privatized players, and said the Indian Railways will never be privatized, adding private investment should be encouraged for more efficient functioning. National Brand Plan or NRP for India in freight or goods trains will be privatized by 2031, along with 30% of the 750 railway station. It is a 30-year plan from 2021 to 2051, which aims for investment of rupees 38.5 lakhs crore. The plan is to create a future-ready railway station by 2031. It has been proven that the private sector doesn't come forward to invest in infrastructure because it has a long growth period. Those for profit to arrive, they must wait for a long. It so appears that the driver and guards will be from the railways, as will be the tracks. The maintenance responsibility of railway stations will continue with railways. The booking will be monitoring by the Indian Railway Catering and Tourism Corporation or IRCTC.
a subsidiary of the railway in Indian Railways. Interestingly, the private players just has to invest in running the trains. Those just will invest for a profit-making trains, and Indian Railways will run only loss-making trains. तो फिर सर ये फिर से वही होगा, गवर्नमेंट का सब कुछ लॉस में जाते, जब प्राइवेटाइज हो जाते वो गेन करते. इसमें कौन सा मिरेकल हो जाते जो प्राइवेटाइज होने के बाद वो प्रॉफिट करते और वही प्रोडक्ट, वही चीज, वही सब कुछ जब तक गवर्नमेंट के साथ रहते वो लॉस में जाते. The private parties will be free to quote any price and might resort to dynamic pricing that happens in the air travel business. If you ask the list what percentage of profit comes back to the public with all the private investment, the answer is that there is no data. It will collect only railway card charges, including fees or using station premises, railway engines, tracks, signals, and overhead electricity, as well as driver salaries. The Indian Rail is driven by a social obligation to private because transport facilities to people and lay the foundation for several small and medium scales economic activities. So privatizing the railways means privatizing profit and bounding the public sector with losses. So it so appeared that government wants public money, the public good, to utilize for private good. And the question arises, will the government make it clear that what will the railway earn from privatization is the first place? And second, safety and security. सर इतना सेफ्टी है नहीं रेल में अभी तक, जिसमें हर टाइम न्यूज़ में आते, हम लोग देखते कितना चोरी होते, कितना डकैती जो होते, उसमें राइट टाइम में कभी पुलिस या रेल का पुलिस कभी टाइम पे नहीं आते. टॉयलेट्स आप अगर देखेंगे कुछ 15 या 20 मिनट्स के बाद टॉयलेट्स का हाल जो खराब होते वो कोई यूज नहीं कर सकते. हाँ, जब हम राजधानी में ट्रेवल करते फर्स्ट क्लास में और कोई वीआईपी जाते तब तो वो मेंटेन होते हैं, लेकिन अदरवाइज सेकंड क्लास या 3 टायर्स जनरल क्लास में बहुत ही मतलब 10 मिनट 20 मिनट के बाद आप यूज ही नहीं कर पाएंगे. टॉयलेट के पास जो बैठे रहते हैं वो भी बैठ नहीं सकते, ऐसा हाल होता है. Food quality not up to the mark. Railway suffering timing late of arrivals in the regular incident. टाइम पे नहीं आते, कोई भी रेल मीन्स यूज कर रहे में किसी का कितना इंपॉर्टेंट काम भी होता है, तो टाइमिंग में अगर नहीं जाएंगे, एक रेल लेट होता है तो सब ऐसे रेल लेट होने जाते हैं. Comfort of the passenger by setting up mood the seating arrangement in the railway station. सर बीच में ऐसा हुआ था, एमपीज को बोले थे आप लोग ब्यूटिफिकेशन करो, आपसे एमपी लैड से दे के 2-4 सीट से बना दो, ये सब कर लिया. लेकिन आपको पता है एमपी, आप एमपी भी हो ना, आपको पता है एमपीज का फंड इतना कम है, आप कुछ भी नहीं कर सकते. जो जरूरत है उससे शायद आप 10% कर सकते हो. उसमें भी अगर जैसे आरबीआई का वो आरबीओ को बोले जे रेलवे ओवरब्रिज का भी आरओबी का भी आप लोग परसेंटेज दे दो, ऐसा होगा नहीं सर. एमपीज के ऊपर रेलवेज का कुछ भी काम आप डालोगे वो एमपीज के जो एमपी लैड होते हैं उसमें आएगा नहीं, इसलिए आप थोड़ा सोच लेना. बंगाल हैज बीन डिप्राइव्ड स्टेप मदरली एटीट्यूड. बंगाल में इस बजट में कुछ नहीं मिला. और बुलेट ट्रेन ऑपरेशन पॉसिबल इन इंडिया बिकॉज ग्राउंड कंडीशन ऑफ इंडिया इज नॉट सेट फॉर द फर्स्ट स्पीड ट्रेन. सर और इसमें जो प्रोजेक्ट जैसे हम लोग का कॉन्स्टिट्यूंसी में होते हैं, ये जो प्रोजेक्ट 10 साल 12 साल 15 साल, मेरा 3rd टर्म हो गया, बहुत सारे फर्स्ट टर्म में स्टार्ट हुआ था, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ. तो इसमें क्या होता, बजट तो बढ़ जाते, वो कहाँ से आप कंप्लीट करोगे. ऐसे भी आप जितना काम करना है वो बजट पे नहीं हो रहा है. जैसे मेरा वहाँ पे शिवड़ी में जो हरजन भजन का आरओबी है वो कितने दिन से चल रहे, बोलने के बाद वो फिर से स्टार्ट हुआ, लेकिन स्टार्ट हुआ मीन्स 1-2 आदमी काम कर रहे, जो और भी 10 साल लगेगा. तो एक तो बजट ज्यादा बढ़ जाते, फिर लोकल लोगों का जो हैरेसमेंट होते, इतना कम टाइम कैसे था. हाँ जो अच्छा बंद करना, ये ध्यान दिलाया. ओके
तो उसमें वो जो कम लोग जो लोकल हैरेसमेंट होता है, उसका रास्ता बंद हो जाता है, वहाँ पे ट्रैफिक जैम होता है, उनका घर में इतना, ये सब प्रॉब्लम सॉल्व जितना जल्दी काम होगा तभी होगा ना। रेल लैंड लिया, कितना फेथ कॉरिडोर के लिए कितना लिया, ये जैसे आप अनाउंस करते, सपोज आप अनाउंस किया 2023 में कंप्लीट होगा, लेकिन अभी तक वो कितने कैसे स्टेज में, उसमें मॉनिटरिंग होता है, इसलिए जो आप अनाउंस करते ये काम इस साल में कंप्लीट होगा, अभी तक वो कुछ हुआ ही नहीं, तो कंप्लीट कैसे होगा? तो फिर वो तो आप भी फेल करोगे ना वो कंप्लीट करने में, इसलिए वो बहुत इंपॉर्टेंट। और टिकट का मैं बारे में बोलूं, टिकट अभी जो स्टेशन में टिकट लेते जहां से जहां जाना है, अचानक वो ट्रेन चेंज कर देते। मैं एग्जांपल देती हूँ, हावड़ा पुरी एक्सप्रेस, वो हावड़ा से पुरी जाना है, पुरी से हावड़ा आना है, अचानक बोलते तो शालीमार में रुकेंगे, तो कैसे लोगों का ये जो हैरेसमेंट, ये देखना है क्यों चेंज होता है कैसे। अभी टिकट आप लोग बुक करते 4 महीने पहले, 4 महीने पहले टिकट बुकिंग फुल हो जाते हैं, ठीक है, ऐसे कोरोना के बाद लोग ज्यादा ट्रैवल कर रहे, काम भी स्टार्ट हो गया, लेकिन अब ट्रेन में जब चलोगे, मैं ये खुद मैं बोल रही हूँ, मैं जब ट्रेन में चढ़ती हूँ ट्रेन खाली है, तो कौन सा सही है? ट्रेन जो खाली है वो सही है और वो टिकट बुकिंग है वो सही है, ठीक है। अभी आप लोग बीच वाला जो ब्रोकर होते थे वो बंद कर दिया, लेकिन फिर भी जो डायरेक्ट बुकिंग होता है उसके बाद भी ये ट्रेन का रिजर्वेशन और ट्रैवल लोग का, वो तो उसमें तो बहुत फर्क है। ये सेकेंडली 50 रुपीज कर दिए थे आप प्लेटफॉर्म टिकट उस टाइम कोविड के टाइम, क्योंकि ठीक है जो कम लोग जाए, लेकिन अभी तो सब कुछ नॉर्मलाइज हो गया, अभी तो हम लोग जैसे सब कुछ कोविड कंप्लीट हो गया, मतलब कोविड का ये चले गए, थर्ड वेव चले गए बोल के हम लोग सब नॉर्मलाइज हो गए, तो फिर 50 रुपीज तो कम करना है, क्योंकि 50 रुपीज में ट्रैवल भी कर सकते हैं लोग, तो फिर प्लेटफॉर्म में वो किया कि नहीं। अच्छा, 750 स्टेशन वो मॉडर्न कर रहे 30, उसमें 300 750 में 300 मॉडर्न स्टेशन बना रहे। उसमें जानना था क्या क्या मॉडर्नाइज जो कर रहे हैं, जैसे फ्लाइट में तो होता है चलो बिजनेस क्लास इकोनॉमिक क्लास, उसमें आप दो को डिफरेंस कर सकते हैं, लेकिन ट्रेन में जो मॉडर्न स्टेशन होगा उसको जो एमिनिटीज होगा, तो जनरल पब्लिक है, बहुत डिफरेंस है उसमें, तो वो कैसे आप उनको सपोर्ट देंगे, वो कैसे वो फैसिलिटीज वो यूज करेंगे। अच्छा, जो एक्सीडेंट हुआ लास्ट 3 साल में, उनके लिए जो कॉम्पेंसेशन करना है उसके लिए कॉम्पेंसेशन मिलना भी उनके लिए दिक्कत हो रही है, इसलिए बहुत सारे लोग कोर्ट तक भी पहुंचते। एक तो एक्सीडेंट, फिर उसका इतना प्रूफ देना पड़ता है, इसका वो प्रोसेस जो है वो अगर जल्दी करे तो मुझे लगता है वो सही होगा। प्लीज ये रेल जिसको दे रहे थे प्राइवेटाइज करने के लिए, तो उसमें किसी का तो एक्सपर्टाइज है ही नहीं इंडिया में, तो कौन सा क्लैरिटी, कौन सा ये क्रेडिबिलिटी आप वो दे रहे हो जो ये होने से उसको मिलेगा ये प्राइवेटाइज करने के लिए। और आपको जो आप बंद करने के लिए बोल रहे हो सर, इसलिए प्लीज कंक्लूड कर रहे हो, लेकिन ये बोल रही हूँ जो भी काम है, अगर ऐसा मेरा सजेशन है, 1 साल में बजट के टाइम कोई नया प्रोजेक्ट ना ले, ऐसा हो सकते कि नहीं, क्योंकि जो पुराना 10 साल 20 साल में हो गया हुआ बंद हुआ है या आधा हुआ है उसको कंप्लीट करे, फिर आप अगर नया प्रोजेक्ट लो फिर भी लगेगा चलो गवर्नमेंट या मिनिस्ट्री कुछ अलग से सोच रहे। जब आप लोग बोल रहे हैं हवाई चप्पल हवाई जहाज में, ये स्लोगन बहुत अच्छे, लेकिन ऐसा ना हो जो पैसेंजर ट्रेन में भी प्राइवेटाइज करने के फेयर इतना बढ़ जाए जो सूट पैंट भी ट्रेन पे भी नहीं चढ़ पाए। जब माइग्रेंट लेबर आए थे वैसे ही चल के आए, ट्रेन फ्लाइट तो छोड़ो ट्रेन पे भी नहीं चल पाए। हवाई चप्पल को उठाओ लेकिन सूट पैंट को भी सोचो उसके बारे में। थैंक यू सर।